نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حبال محمد صلى الله عليه وسلم خير من عبادة السنة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا صلاۃ و سلام علیہ آپ لوگ تھوڑا جگہ بنا لیں یہاں سیدھی رکھائیے تھوڑا سا جگہ بنا لیں پیچھے ہو جائیں تھوڑا پیچھے ہو جائیں سیدھی عزیزان ملت اسلامیہ غوث العالم تارک السلطنت محبوب ازدانی مخدوم سلطان سرشف جہانگیر چمنانی رضی اللہ تعالیٰ کے دیار محبت میں آئے ہوئے عاشقوں، بڑے خوش نصیب ہو تم، اور کیوں نہ ہم سب اپنی قسمت پر ناز کریں۔ سبحان اللہ کہ ہمیں بلانے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، ہمیں تمہیں بلانے والا کچھوچے کی سرزمین پر، پہلے ابھی تو نہیں آئے تھے، نہ نسل نورالعین آئی تھی نہ نورالعین آئی تھی، واہ، سب کو بلانے والا ہے کون؟ ہم سبوں کو بلانے والا وہ ہے جس کا انتخاب خود رب قدیر نے کیا، اور وہ ذات ہے غوث العالم تارک السلطنت مخدوم سلطان سے جہانگیر چمنانی کی۔ سبحان اللہ بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ جسے غوث العالم بلا لے، اور وہ غوث العالم جو خود فرماتا ہو کہ جیسے گروہ انبیاء میں صدیق خطاب ہے محبوب خدا کا، اور گروہ صحابہ میں خطاب صدیق حضرت سیدنا ابو بکر کا ہے، ایسے ہی گروہ اولیاء میں صدیق خطاب ابراہیم ابن ادہم اور غوث العالم تارک السلطنت مخدوم سلطان سے جہانگیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے صدیق نے ہمیں بلایا ہے۔ اچھا جب بلاتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ کیسا سخی داتا ہے، سبحان اللہ کیسا سخی داتا ہے دوستو، زبان سے نکلتا بھی نہیں ہے، دل کو سکون دیتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ چین دیتا نظر آ رہا ہے، قرار دیتا نظر آ رہا ہے، کیوں نہ قرار دے مخدوم اشرف؟ مخدوم اشرف اسی لیے اس دار فانی ہی میں آئے تھے۔ اشرف تمہاری ضرورت ہے امت مسلمہ کو، جاؤ کوچ کرو، سمنان کے تخت و تاج پر براجمان ہونے والا وہ سلطان اپنی سلطانی کو برقرار رکھتے ہوئے ایسا مت سمجھنا کہ مخدوم اشرف کی سلطانی نہیں ہے۔ مخدوم اشرف نے نہ کل سنگار کو چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا ہے، نہ کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا ہے۔ ارے اشرف چھوڑنے والے نہیں ہے، بلکہ جو ترے اشرف کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، مخدوم اشرف یہ دیکھتے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، بھاگنے کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ اشرف کے ایک بھاگ، تیرے بھاگنے سے کیا ہوگا؟ تیری ڈور تو اشرف کے ہاتھ میں، اشرف کے ہاتھ میں ہے۔ آنا تو بھی ادھر ہی ہے، آنا تو اسی غوث العالم کے پاس ہے، آنا تو اسی تارک السلطنت کے پاس ہے، آنا تو اسی محبوب ازدانی کے پاس ہے، آنا تو اسی فاطمہ کے نور نظر کے پاس ہے۔
जिस घराने के मुताल्लिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अहले बैत अतहार आले मोहम्मद की, आले मुस्तफा की, आले फातिमा की, खानदाने नबूवत की वो शान है मोमिनो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कोई भी बंदाए मोमिन सिर्फ खानदाने नबूवत एक दिन मोहब्बत करते, एक दिन मोहब्बत करते, फरमाते क्या है, एक साल की इबादत से कहीं ज्यादा अफजल वो एक दिन की मोहब्बत है। एक दिन की मोहब्बत है। दोस्तों हम आए हैं बारगाह मखदूमी में, यकीनन उनकी मोहब्बत, उनकी उल्फत, उनका प्यार लेकर के आए हैं। लोग कहते हैं, हमारे हज़रत मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया, खानदान अशरफ 600 साल से चमक दमक रहा। अरे दोस्तों, यकीनन क्यों न चमकेगा, क्यों न ये दमकेगा, क्यों न ये फले फूलेगा खानवादा। दोस्तों, जिस खानवादे को सरपरस्ती मखदूम अशरफ कर रहे हो, गौसे आजम कर रहे हो, जिस खानवादी को पसंद किया हो मेरे सुल्तानुल हिंद ने, गरीब नवाज ने पसंद किया हो, दोस्तों यकीन जानो वो फलेगा क्यों नहीं, वो तरक्की करेगा क्यों नहीं, उस पे सवाल आएगा कैसे। अरे खानवादे की बात तो जाने दो, जो गुलामाने अशरफ हैं, खुदा की कसम कभी सवाल का शिकार नहीं हो। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल उसकी वजह क्या है, लोग अपने अपने तौर पे ढूंढते रहे, लेकिन ये फकीर अशरफी गदाई जिलानी जो समझता है, बस उसी रोशनी में मैं बयान करना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत मशहूर वाक़या आपने बारहा सुना होगा मशाइख निज़ाम की ज़ुबानी में। मेरे जद्दे करीम हुज़ूर मखदूम अल-आफ़ाक़ हाजुल हरमैन शरीफ़ैन सरकार सीदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी मज़ार पाक हज़रत मखदूम सिमनानी की बाईं तरफ है, एक ही गुंबद में, बेशक मुर्शिद बरकत आराम फरमा रहे हैं, उसी अंदाज में, उसी प्यार मोहब्बत के साथ जैसे अबू बकर महबूब खुदा के पहलू में, सुभान अल्लाह, मेरा नूरुल-ऐन, मेरा जद्दे करीम अपने रसूल आलम के पहलू में आराम कर रहे हैं। वो सीदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन, हज़रत को शौक था कीमिया बनाने का, सोना बनाने का, बहुत शौक, कई दिन से बना रहे थे, और गौसुल आलम इस मंजर को देखा करते थे, मखदूम पाक देखते थे। एक दिन बुलाया खानकाह में, पूछा अब्दुल रज़्ज़ाक़ क्या बनाते हो, ये क्या दिन भर किया करते हो बैठ करके, आग जलाते हो बुझाते, जलाते बुझाते, कभी तेज करते हो, कभी कम करते हो, कभी तेज करते हो, कभी कम करते हो, क्या वजह है। हाज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन ने फरमाया, हुज़ूर मैं सोना बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कहा कितने दिनों से, कहा इतने दिनों से मैं सोना बना रहा हूँ। कहा कितना बना डाले जरा दिखलाना तो। कहा सरकार नुस्खा तो मिल गया है, बनाता तो लेकिन बन नहीं पाता। कहा वजह क्या है, कहा कभी आग ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो जितना टेम्परेचर देना चाहिए मिल नहीं पाता, इसलिए सोना बन नहीं पाता है, कीमिया बन नहीं पाती। कहा अच्छा ऐसा करो, बनाना बाद में, मुझे जरा सी जरूरत है एक पाक साफ मिट्टी के ढेरे की, खानका के बाहर जाओ जरा लेकर के आओ। तो आप पहुंचे, मुर्शिद का हुक्म, खानका के बाहर गए और जाकर के मिट्टी का एक ढेला लेकर के आए। हजरत मखदूम सिमनानी ने फरमाया अब्दुल रज़्ज़ाक़ क्या हुआ, कहा हुजूर ला रहा हूं। कहा लाओ। अहबाब बैठे हुए हैं, अकीदतमंदों का, खुलफा व मुरीदीन का हुजूम लगा है, गौसुल आलम की बारगाह है, शहजादा गौसुल आलम लेकर के आ रहा है, लेकर के आ रहा है। दोस्तों मखदूम पाक ने फरमाया लाए नूरुल-ऐन, कहां लाया हो हुजूर। लाओ मेरे हाथ में। जैसे मिट्टी का ढेला हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन ने मखदूम अशरफ के हाथ में दिया, देना ही था मखदूम पाक के हाथ में, वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। हज़रत ने पूछा नूरुल-ऐन मैंने मंगाया है मिट्टी, तुम ला करके सोना दे रहे हो।
क्या सोना बनाने में कामयाब हो गए? कहा नहीं हुजूर, लाया था मिट्टी। फिर लेकर के आओ, फिर लेकर के आओ। फिर गए, फिर लेकर के आए। फिर गौसुल आलम ने मुस्कुरा के दिया, कहा लाओ मिट्टी का ढेला। जैसे ही हाथ में लिया, लेते फिर मिट्टी का ढेला सोना हो गया। सुभान अल्लाह। हज़रत ने फरमाया, अब्दुल रज़्ज़ाक़ क्यों मजाक करते हो? अरे मंगा रहा हूं मिट्टी ला ला के तुम सोना देते हो, दिखता बहुत ढेर सब सोना बना के तुम रखे हो। जाओ फिर लेकर के आओ। दो तीसरी मरतबा जब गए तो गौसुल आलम के बेटे थे। क्या बात है, क्या कहने। जानशीन मखदूम अशरफ थे। ऐसा जानशीन, ऐसा नुरुलैन कि जिसके बारे में मखदूम अशरफ फरमाते हो कि जैसे कल रोज़े महशर महबूब इलाही को अपने खसरों पे नाज होगा, ऐसे ही मुझे अपने अब्दुल रज़्ज़ाक़ पे नाज होगा। सुभान अल्लाह। वो नुरुलैन तीसरी मरतबा जब खानकाह के बाहर निकला, मिट्टी को हाथ में लिया और देखते चले आ रहे हैं, ये सोना बनती कैसे है, ये बनती कैसे? देख रहे हैं लेकिन मिट्टी है। अभी सोना बनने का नाम नहीं, लेकिन ये भी निगाह नहीं हटा रहे। दो मरतबा धोखा खाया और तीसरी मरतबा नहीं खाऊंगा। लेकर के पहुंचे बारगाह गौसुल आलम में, और मखदूम सन्नानी के हाथ में दिया। निगाह मखदूमी जैसे टकराई उस मिट्टी पर, फिर वो सोना हो गई। सुभान अल्लाह। फिर वो सोना। और सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुलैन ने जैसे ही सोना होते हुए देखा, फौरी गौसुल आलम के सीने से चढ़ गए, लग गए, गाय मुशीरा पर हाथ, मैं लाता हूँ मिट्टी, हाथ में पहुंचते ही बन जाती है सोना। कहा अब्दुल रज़्ज़ाक़, सोने को हाथ के जरिए बनाना बंद कर दो, सारी जिंदगी बनाते रहोगे, नहीं बना पाओगे। अब्दुल रज़्ज़ाक़, निगाहों में वो नूर पैदा करो जिस पर डाल दो वो सोना। या रसूल अल्लाह। हुजूर अशरफुल उलमा, फैज़ान हुजूर अच्छे मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उस निगाह दरवेशी का आलम ये हुआ, मखदूम अशरफ की तरबियत का आलम ये हुआ, निगाह नुरुलैन का आलम ये हुआ कि जब हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुलैन ने सोना बनाना बंद किया और निगाहों से पिलाना शुरू किया, तो दुनिया ने देख लिया हर दौर में ऐसे सोने निकले हैं, ऐसे बकरार करने निकले हैं। कोई कम शबी है गौसे आज़म की शक्ल में नजर आ रहा है, गौसे आज़म की शक्ल में नजर आ रहा है, कोई सरकार अच्छे मियां की शक्ल में नजर आ रहा है, कोई अमीर मिल्लत की शक्ल में नजर आ रहा है, कोई सरकार कला की शक्ल में नजर आ रहा है, कोई सरकार नेमत अशरफ की शक्ल में नजर आ रहा है। आज हम शेखुल इस्लाम की शक्ल में देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ये निगाहे नुरुलैन का असर है। कहीं तुम्हें शेखुल इस्लाम नजर आ रहे हैं, कहीं सूफी मिल्लत नजर आ रहे हैं, कहीं कुतुब मशाइख नजर आ रहे हैं, कहीं शेख आज़म नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब इनकी निगाहों का कमाल देखो। अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरुलैन की निगाहें करम सरकार शाह अली हुसैन पर पड़ी। दुनिया हम सभी है गौसे आज़म की शक्ल में देख रही है, और उसी हम सभी है शेख हम सभी है गौसुल आज़म की निगाह पड़ी अहमद रज़ा पर, इमाम अहमद रज़ा पर। दोस्तों, दुनिया आला हज़रत के नाम से जान रही है, दुनिया आला हज़रत के नाम से जान रही है, और वो भी किस अंदाज में, उस अज़ीम शान हम सभी है गौसे आज़म को देख कर कहते नजर आ रहे हैं, अशरफी एक नजर कर दो परवरदा सहन महबूबा।
नूरैन ने अपने औलादों पे डाला तवज्जो, मखदूमुल मिल्लत पैदा हुआ और मखदूमुल मिल्लत ने जब तवज्जो फरमाई, तारीख शाहिद है, बरेली की धरती पे रहने वाला मुस्तफा रज़ा खां मुफ्ती आज़म बन के चमका, कोई मुजद्दिद इस्लाम बन के चमका, कोई सदरुल शरिया बन करके चमका, कोई इमामुन नहव बन के चमका, कोई अमीन शरीयत बन करके चमका। जब दोस्तों औलादे नूरैन की बसीरत का ये आलम है, तो नूरैन का आलम क्या होगा, क्या होगा। यकीनन दोस्तों आए हो बारगाह में मखदूमी में, आए हो जद्दे करीम की बारगाह में, आए हो अर्श सुल्तान की बारगाह में, जो तुम्हारा भी मुर्शिद है हमारा भी मुर्शिद है। अशरफियों नाज करो, ए मखदूम अशरफ के गुलामों नाज करो। मखदूम अशरफ के औलादे हों या औलादे नूरुल-ऐन हों या उनसे वाबस्ता लोग हों, दोस्तों मेरे मखदूम की निगाह में सब बराबर है।